Welcome to the digital world of Ojang IAS. Ojang IAS is one of the most reliable and authentic institute of India, especially in the field of civil services. Myself, Dr. Kumar Nalin, Faculty of History, educated from University of Delhi and also associated with this university as assistant professor. Teaching is not only my profession, but also it's my passion. I am mentoring the civil services aspirant since last 2 decades. Apart from the teaching, I have written so many books on history, especially on world history and Indian history, published by eminent publishers like McGraw Hill Publication, Arihant Publication, Orient Black Swan Publication, etc. Today, I am going to discuss a strategy and planning of history optional subject, one of the most popular optional among civil services aspirants, and not only popular but a scoring subject. ओजांग आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमार नलिन आज इस मुद्दे पर परिचर्चा करूंगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट प्रतियोगियों के लिए कितना उपयोगी है। दुष्यंत कुमार के एक शेर से मैं अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक परसेप्शन था मार्केट में कि इतिहास विषय से टॉप रैंक नहीं आते, स्कोरिंग नहीं है, इट्स ओनली ए परसेप्शन, नॉट द रियलिटी। विद इन 2 years, especially last 2 years, the whole team of Ojang IAS, including me and our director Ojang sir, just try to break this myth. Why not? We can produce the topper of civil services, rank 1. And we created history. Shruti Sharma, All India rank 1, came from our institute with history optional. इतिहास इतना लोकप्रिय विषय रहा है कि एक परसेप्शन मार्केट में डेवलप किया गया कि हिस्ट्री इज ए पॉपुलर, इट इज राइट, बट नॉट स्कोरिंग। तो हमने इस पर काम किया कि कैसे इसको स्कोरिंग बनाया जाए, कैसे टॉप रैंक लाया जाए। And during the corona time, the whole world involved to resolve this crisis. And during this crisis, we all have worked on it. And just after the corona, we created history. With history optional, rank 1. और जब ये रैंक 1 आया हमारे संस्थान को, तो ओजांग सर became so excited कि यस, आई कैन डू। 1 दशक के अंदर हमने रैंक 1 प्रोड्यूस किया। ये जो आज का सेमिनार है वो इसी मुद्दे पर फोकस है
कि इतिहास वैकल्पिक विषय से हम कैसे हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी रणनीति और योजना क्या होनी चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रेटजिक एंड प्लानिंग विथ हिस्ट्री ऑप्शनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर which is focused on history optional. But before going to discuss all these things, I start this lecture with the basic information of civil services. Might be all of you and most of you aware with this fact, but some of you maybe, may not be, don't have the basic ideas of civil services structure. So firstly, I am going to discuss the basic things. Then I will discuss the history, a specific strategy and plan. And whatever I am going to discuss today, the rest part I will discuss tomorrow and day after tomorrow. It's 3-day phenomena. 3 days free demo class for all of you. All of you. It starts with how to crack IAS exam. First of all, just try to understand the IAS exam pattern. Try to understand the IAS exam pattern. Civil Services Examination, IAS exam pattern. IAS exam pattern. आप में से बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। मैं मान के चलता हूं कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो आज इसी कक्षा से अपनी तैयारी आरंभ कर रहे होंगे। और ये जो हमारा मोड है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रहे, किसी भी माध्यम से रहें, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कोई भी मीडिया हो, हम आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो ये आईएएस पैटर्न, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज पीटी, 400 marks. And PT is not a process of selection, but it's a process of rejection. It is just a screening test. Process of rejection. Rejection for those who are not very serious. Not those who are serious. PT 4. Then mains and interview. Mains 1750 marks, interview 275 marks. The total 2025 marks. That is the base of the final merit list. सेकेंड और थर्ड स्टेज के कंबाइंड मार्क्स के आधार पर ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हैं। अब देखो ये जो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, फर्स्ट स्टेज में आपको यहां आना है और सेकेंड और थर्ड स्टेज यहां। अब इसी स्टेज का संबंध इतिहास या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से है। फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पीटी, पेपर फर्स्ट जीएस 200 marks, 100 question, 1 question is equal to 2 marks. Merit list, sorry. Merit list depend on first paper first, and paper second was only a qualifying criteria. CSAT 200 marks, 80 question, 1 question is equal to 2.5 marks. Only the qualifying criteria is 33%. So you have to score only 33% on paper second.
and merit list depend on paper first. Nature, MCQs with negative marking. One right question is equal to 3 wrong answers. Merit list, PT. Next. In this section, we have the 7 topics. 7 topics, paper first. And in this 7 topic, the one of those was History of India. History of India. Point to be noted. History of India is also the part of our PT syllabus. History of India. So it's very important for you, PT. History optional. ओके, ये जो पीटी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप देखो यहां पे जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करोगे तो इट इंक्लूड द प्रीलिम सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ऑप्शनल पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको इसके लिए सेपरेटली यू हैव टू स्टडी प्रीलिम्स एंड मेंस. हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. इन दिस सेक्शन नॉर्मली वी हैव 100 questions, and within this 100 questions आप एक कुर्सी कीजिए. normally we have 20 questions, not exactly but approx 20 questions, that is 40 marks. If you are going to take the history optional, you can cover the 20 question of GS prelims, that is the 40 marks. And the total marks, (200). And what was the qualifying? The merit list. In general category, we have less than 100 marks. Last time 98 last cutoff the in general category, apart from the EWS, OBC, SC, ST and other reserve categories including physically challenged. 200 मार्क्स के टोटल है. 100 मार्क्स मैक्सिमम जाते हैं और उसमें से 40 मार्क्स कवर्ड बाय द हिस्ट्री. कवर्ड बाय द हिस्ट्री. आप ध्यान से समझना इस पूरे फेनोमेना को. जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं 40 मार्क्स के. 100 पर मेरिट लिस्ट बन रहा है, 40 मार्क्स हिस्ट्री से. और हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट वेरी स्टैटिक, स्पेशली इन द प्रीलिम्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस एंड ऑप्शनल, दैट इज वेरी डायनामिक, बट इन द प्रीलिम्स दैट इज नॉर्मली स्टैटिक क्वेश्चंस. सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. ये परसेप्शन जो इनके बारे में बना है कि हम ऑप्शनल की तैयारी बाद में कर ले, नहीं, ऑप्शनल पहले, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस. दैट इज पेपर सेकंड, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग्स. द एक्सपर्ट ऑफ सीसेट फोकस हिज लेक्चर ऑन दिस थिंग्स. वो इस पर अपने विचार रखेंगे. अब देखो आप यहां पे जो स्टेज सेकंड है, मेंस एग्जामिनेशन.
मेंस एग्जामिनेशन। अब इस मुख्य परीक्षा को आप समझने का प्रयास करो। पेपर फर्स्ट, दैट इज पेपर 1, कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कुछ भी मेंशन है, जितने भी भाषाओं का जिक्र है, अमन कुमार, राइट। छात्रों का अनुरोध आ रहा है कि सर हिंदी में भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मैं हिंदी में भी प्रयास करता हूं। अब देखो, ये जो कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज है, इसमें एक भाषा का पत्र चयन करना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा, किसी एक भाषा का आप चयन कर सकते। तो हिंदी बेल्ट में नॉर्मली वी टेकन हिंदी लैंग्वेज। इन साउथ इंडिया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन ईस्टर्न इंडिया में भी बंगाली। वेस्टर्न इंडिया में भी मराठी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, गुजराती। कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज। एंड पेपर बी, इंग्लिश। English is compulsory for all. Qualifying nature 25% only. Marks 300 and 300. Duration of examination 3 hours each. हिंदी और इंग्लिश, ये जो मुख्य परीक्षा है, ये कंपल्सरी फॉर ऑल। लेकिन इसमें जो मार्क्स आते हैं, सर मेरा भी हिंदी मीडियम है। ठीक है, ठीक है, मैं हिंदी में भी आपको लेक्चर दूंगा। दरअसल मैं पूरे प्लान कर रहा हूं कि बाइलिंगुअल ये पूरा लेक्चर हो जाए, ताकि हिंदी इंग्लिश जो भी जुड़े हैं किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो आप देख लो, मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी मीडियम को कोई दिक्कत ना हो। आप देखो यहां पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ऑफ 3 hours each। अब ये जो मैंने कहा, ये लैंग्वेज का पेपर है। ये लैंग्वेज बेसिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, और इस पेपर में क्वालिफाइंग नेचर है केवल 25%। इस पेपर में जो मार्क्स आते हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। अब मेरिट लिस्ट में कौन जुड़ता है, आप इसको देखो यहां पर। पेपर फर्स्ट ऐसे, पेपर सेकेंड जीएस, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन ऑप्शनल पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। मिनिमम रैंक के मेरिट रैंकिंग नेचर, इसी पर आपका ये मेरिट बनेगा, और इसमें मिनिमम स्कोर करना है 10% इच। इसका मतलब है कि अगर आप किसी पेपर में एब्सेंट हो जाते हो, अनुपस्थित हो जाते हो, तो आपका चयन नहीं होगा, चाहे अन्य पेपरों में आपके जितने मार्क्स आए। सो यू शुड हैव टू, और you have to appear all the papers and secured minimum 10%, minimum 10%, 250 marks each and 3 hours each, total 1750 marks. Required cutoff, after the required cutoff you have to select it for interview. What is interview? Interview is nothing but the personality test. Personality test. So 275 marks. Total 2025.
So I am requesting you, all of you, that just note down all these complications, all this information in your notebook. It is very important and compulsory for all. स्ट्रेटजी प्लानिंग के में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि यू हैव टू स्टडी द सिलेबस, द नेचर ऑफ एग्जाम, द डिमांड ऑफ द एग्जाम, द डिसिप्लिन ऑफ द एग्जाम. So just write down. I am giving you few minutes. कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं स्पष्ट. हाँ, मोबाइल पर कर दो आप. एक बच्चे का प्रश्न है कि 10% मीन्स क्या होता है. 10% का मतलब ये हुआ कि ये जो पेपर है 250 मार्क्स के, उसका 10%, दैट इज मिनिमम 25 मार्क्स. 10% ऑफ 250. तो सिंपल सी बात है, 250 25, minimum 25 marks are required for the qualification in the mains examination for the interview. 275 का ये इंटरव्यू है. अब देखो आप यहां इस मेंस पेपर में जीएस पेपर फर्स्ट. अब यहां आ जाओ, जीएस पेपर फर्स्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. जीएस पेपर सेकेंड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, social justice and international relation. International relation. So history is related to paper first, Indian heritage and culture, history of the world, history and geography of the world, society. अब आप देखो यहां पे हाउ मच टाइम विल इट टेक कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस. एक्चुअली वी हैव 4 sections. 4 sections means 4 months, and 1 month I am taking for any type of casualties. So total 5 months I will complete this syllabus within 5 months. So if you have the time, 5 months, you can join our course. And if you are planning to join our course, you should have to 5 months in your hand. 5 months in your hand. अब देखो आप पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. पेपर फोर्थ, एथिक्स
integrity, and aptitude. Ethics, integrity, and aptitude. Stage third, personality test. That is the interview. Interview is not the test of knowledge, but it is the test of your personality. Personality. So now I am going to discuss the history optional. UPSC, given we have the choice of 47 subjects. 47 subjects. आप 47 विषयों में से कोई एक विषय का चयन कर सकते हैं. 47 मल्टीपल चॉइस. हिस्ट्री is one of those. The first question is why I choose the history optional, which is too vast, too lengthy, not scoring, and so many perceptions regarding this history subject. कई सारे परसेप्शंस हैं, पूर्वाग्रह है. लोगों के दिमाग में ये बात बार बार भर दी गई कि इतिहास का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इतिहास का विस्तार अत्यधिक है. सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द हिस्ट्री. इतिहास में बहुत सारे तथ्य हैं. आज का जो मेरा यह सेशन है वह इसी तिलस्म को तोड़ने का प्रयास है, क्योंकि हमने इस बार सिविल सर्विसेज में इस तिलस्म को तोड़ा और इतिहास विषय से इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नंबर 1 रैंक प्रदान किया. श्रुति शर्मा आज लोगों की जुबान पर है, जन जन के जुबान पर है. लेकिन तब ये लोग कहां थे when she was suffering from all these perceptions? उसके भी मन में ये बातें थी. सफलता के बाद तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन सफलता के पहले उस पर काम कौन करता है? आज का जो आपका संघर्ष है वही कल आपको सफलता का रास्ता बनेगा. आज आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एनर्जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ योर रिसोर्सेस, ये सब निवेश ही तो है. और जब निवेश नहीं करेंगे तो रिटर्न की चाहत ही मत रखिए. Civil services, not only in India, but in the world, the best examination, the toughest examination of the world. But actually, it is not the toughest examination. It's not the hard work, but it's the smart work. कितना पढ़ते हैं इसका कोई मतलब नहीं रहता. How to study, कैसे पढ़ते हैं, how to collect the information, how to analyze the information. और सिविल सर्विसेज इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है, इट्स द नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज. और सफल होने का मतलब केवल छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना नहीं है. सफल होने का मतलब केवल छोटी लड़ाइयां जीतने का मतलब नहीं है. सफल होने का मतलब है पूरा युद्ध जीत जाना. विक्ट्री ऑफ द कंप्लीट वार.
complete war. So try to understand my objective of this lecture. बच्चे पूछ रहे हैं कि हम इस इतिहास को लेके नहीं, कब हमारा एग्जाम होगा। आप देखो, टारगेट अपना फिक्स करो कि कब आपको एग्जाम में अपीयर होना है, उसके हिसाब से आप इस ऑप्शनल का चयन करो। इफ यू हैव मिनिमम 5 months in your hand, then you will start history with us. I am not giving you any spiritual thing and any other things. हमारे पास कोई जादू का टोटका नहीं है जो मैं आपको दूंगा और आप हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना एश्योर जरूर करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको इतिहास पढ़ने का तरीका जरूर बता दूंगा। एक और भी है इस हमारे फील्ड में, जो सिविल सर्विसेज के फील्ड में, हिस्ट्री के प्रति इतना परसेप्शन क्यों बना? क्योंकि इतिहास पढ़ाने वाले अधिकांश जो फैकल्टी है, दे आर नॉट coming from the history background. They educated from different stream and teaching history as a faculty member. तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इतिहास को इन्होंने एक फैक्ट का, तथ्यों का संकलन मात्र मान लिया। मैंने एक सर्वे किया कि सिविल सेवा के जो फैकल्टीज है उनका बैकग्राउंड क्या है और वो पढ़ाते क्या है। मैंने देखा, विदाउट मेंशनिंग एनी नेम इन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, more than 90% faculties are not teaching those subjects who they had the background. जो उनकी पृष्ठभूमि है वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहे, और जो पढ़ा रहे हैं उसके पृष्ठभूमि नहीं है। एकेडमिक्स का होना बहुत जरूरी है, तभी डेप्थ आएंगे आप में। हिस्ट्री ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल के लिए मैं आप सबको यह सलाह दूंगा कि आप वो ऑप्शनल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट इज नंबर 1, देन एकेडमिक बैकग्राउंड, then availability of the guidance, availability of the source material. So we have so many factors, बहुत सारे कारक है। आप देखो, आपको मैं दिखा रहा हूं। (47) सब्जेक्ट्स में से एक हिस्ट्री का चयन करना है। अब हिस्ट्री का ही चयन क्यों करें, इस पर मेरी बात देखो आप। हिस्ट्री ऑप्शनल में आप देखो, सबसे पहले कि वी हैव 2 पेपर्स। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। (250 marks, 250 marks. History optional completely. 500 मार्क्स। ऑप्शनल आपके 500 मार्क्स के हैं, जीएस 1000 के। हिस्ट्री में आप देखो 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इन दिस पेपर वी हैव 2 सेक्शन।
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंड सेक्शन बी, medieval Indian history. Ancient Indian history and medieval Indian history. In paper second, section A, modern Indian history. And section B, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब आप देखो यहां, यू हैव टू स्टडी 4 sections: एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, medieval Indian history, modern Indian history. That is already the part of prelims and mains. History of the world, it also the part of GS mains. History of the world is not the part of GSPT. प्रारंभिक परीक्षा में यह नहीं है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में. तो हिस्ट्री का अगर एज ए ऑप्शनल आप प्रिपेयर करते हो तो आपको फिर अलग से मेंस और प्रीलिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लेते हो तो भी आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना. हिस्ट्री ऑप्शनल. अब देखो आप यहां, अब एक वेन डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूं. जितने भी सब्जेक्ट हैं इसका सबका कॉमन अगर आप फीचर निकालोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड इतिहास से ही बनेंगे. लैंग्वेज का कोई पेपर उठा लो, मे बी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी फर्स्ट पेपर में आप देखना लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर का निकालो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अदर ऑप्शनल में भी आप देखोगे कि ये कोर सब्जेक्ट है और हिस्ट्री एक कॉमन है जहां पर हर दूसरे सब्जेक्ट की पृष्ठभूमि इसी इतिहास से बनती है. तो जितने भी ऑप्शनल आपको दिए गए हैं, इन सारे ऑप्शनलों में आप अगर हिस्ट्री को देखोगे तो एक तो हिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं, ऑप्शनल में 500 मार्क्स इसमें आ रहे हैं. अब देखो, अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी में आप देखना कि इसमें लगभग 40 मार्क्स पीटी में आ रहे हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल से 500 मार्क्स आ रहे हैं. अब यहां से आप जीएस निकालो, जीएस पेपर फर्स्ट. जीएस पेपर फर्स्ट में आप देखोगे कि इसमें 3 सेक्शन है. एक इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी. 250 मार्क्स के वो पेपर है. इसमें ऑन एन एवरेज 100 to 125 मार्क्स जीएस पेपर फर्स्ट से आते हैं. जीएस पेपर फर्स्ट से आते हैं. यानी कि आप प्रीलिम्स में 40 मार्क्स और जीएस पेपर फर्स्ट में 100 to 125 मार्क्स यहां से उठा सकते हो. अब आप देखो, इसके अलावा इनडायरेक्टली जीएस पेपर सेकेंड,
जीएस पेपर सेकंड में आपको पढ़ना है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड अदर थिंग इन आईआर। इंटरनेशनल रिलेशन का बेस ही है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडो पाक रिलेशन, इंडो यूएस रिलेशन, इंडो रशियन रिलेशन, इंडो फ्रेंच रिलेशन। आईआर का जो टॉपिक है उसकी पृष्ठभूमि विश्व इतिहास से निकलती है। सो इफ यू हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, you certainly get a very good marks in the IR paper. Indian constitution has background in the history, background of the constitutional development. ये आप हिस्ट्री में ही पढ़ते हो। जो भी वर्तमान संविधान है इंडियन पॉलिटी में, आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो उसकी पृष्ठभूमि कहां से? इंडियन हिस्ट्री से। चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, यही तो आगे चलकर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनता है। प्रोविंसेस से संबंधित जितने प्रावधान हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री पेपर, स्पेशली इन मॉडर्न इंडिया। तो जो जीएस पेपर सेकंड है, इनडायरेक्टली हिस्ट्री गिव वेरी मच सपोर्ट टू योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एटसेट्रा। इन जीएस पेपर थर्ड, internal security is the part of GS third. So background of the internal security, that is Naxalism, that was based on the unequal distribution of land, terrorism in northeast region, that was the that is related to the reorganization of our states and lacking of consolidation in northeast areas. Security threat in Jammu and Kashmir, that is related to the partition of India, that is the part of our modern India. So GS third it gives. In GS paper fourth, all the statesmen taken from the different philosophers of the world like Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Philip Francis, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Locke, Hobbes, all we have studying in world history paper. So many important characters asked in paper fourth related to Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar, Swami Sahajanand Saraswati, and other scholars. So indirectly, history also give a very good support to the GS paper fourth. So almost, if we taken the complete GS, we can imagine approx 400 marks indirectly related to GS, 100 to 125 directly and other indirectly. Also, the 40 marks NPT. And apart from this, we have also and the paper of essay. Paper of essay. दो प्रश्न पूछे जाते हैं एंड दोनों में चार चार विकल्प है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप देखना उसमें उस चार विकल्पों में एटलीस्ट वन ऑप्शन इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द हिस्ट्री in the very last year.
2021, one question asked about the cultural aspect of the South Asia. South Asia. South Asia means southern part of the Hindu Kush mountain, Oxus River, southern part of the Oxus River, and north of the Indian Ocean. 8 countries are the part of the South Asian countries, South Asia. India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Maldives and Sri Lanka. These 8 countries are the part of the South Asia. You can say, sir, it is related to the geography. No geography. The question is cultural aspect of this South Asia, and culture and cultural aspect is the part of the history. And if you are well aware with the Indian history, you can easily write such type of essays. आप बहुत ही आराम से, प्रेम से इसका आंसर लिख सकते हैं. और आंसर कितने लिखने? 1000 वर्ड्स एंड 1200 वर्ड्स. इतने वर्ड्स आप ऐसे को पढ़ के समझ के नहीं लिख सकते इफ यू डोंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री. तो हिस्ट्री क्वेश्चन से आप ऐसे के पेपर में भी आपको सपोर्ट मिलते हैं. यहां भी सपोर्ट मिलेगा. अब आप देखो यहां पे एक इतिहास की तैयारी कर 5 4 1100 9 to 11 and 50 40 90 1190 marks directly and indirectly related with the history, optional. So just try to understand. इस क्लास में दोनों ही माध्यम के बच्चे हैं और कई बच्चे आपस में हिंदी इंग्लिश करके ये डिबेट कर रहे हैं. उन सबसे अनुरोध है कि आप कंसंट्रेट करें कंटेंट पर. इंग्लिश हिंदी का डिबेट आप बाद में कर लेंगे और प्रयास मेरा है कि हम दोनों माध्यम से, कोई भी इसको नेग्लेक्ट ना समझे, हिंदी माध्यम के भी बच्चे, आपके मन में कोई ये बात ना आ जाए. मैं सब कुछ आपको हिंदी में ही बताऊंगा. आप पहले आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप समझो बात को कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या है. मैंने आपसे कहा ना कि व्हाई आई टेक हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज. मैं लू ही क्यों? हम आपको इसके अदर एस्पेक्ट भी बताएंगे, रेफरेंस बुक भी बताएंगे, बट नॉट ओनली दिस क्लास. आप देखो यहां पे हिस्ट्री का ये मल्टीपल फेनोमेना है. आपने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा. किसी बच्चे ने लिखा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. ऐसी चीजों पर भी ऐसे आते हैं लिखने, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हिस्ट्री का. आप 3 4 5 एग्जाम्पल दे दो, आपका आंसर तैयार. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है. इस प्रकार के जब कोई क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री में आए, ऐसे में आए, कहीं भी आए, और आपने विश्व इतिहास और आधुनिक इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है, तो यू कैन इजिली गिव द आंसर. इजिली गिव द आंसर. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल.
ये आप देखो। अब इसमें मैं आगे आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन का पैटर्न है। क्वेश्चन पेपर्स, पेपर फर्स्ट, section A. But section A not mentioning any section, but section A is basically ancient Indian history. Ancient Indian history. And in section B, एक्चुअली वी हैव द शॉर्टेज ऑफ दिस स्पेस की कमी आ रही है, इसलिए मैं एंशियंट की इसका जिक्र नहीं कर रहा। आप ऑलरेडी बताया मैंने कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, मैं केवल इतना मेंशन कर रहा हूं। सेक्शन बी। अब देखो आप यहां क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8। पेपर फर्स्ट में कुल 8 प्रश्न होते हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैपिंग, मैपिंग 20 प्लेसेस होते हैं। और इनके बारे में 30 वर्ड्स में लिखना होता है। ये मैपिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो आपके क्वेश्चन है ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सबसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो प्रश्न आते हैं इसमें 5 होंगे, ए, बी, सी, डी, ई। देन ए, बी, सी, ए, बी, सी। अब देखो आप यहां क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो कंपल्सरी। पहला और 5वां प्रश्न कंपल्सरी होता है। ये जो 5 कंपल्सरी है, आप देखो इसमें फर्स्ट एंड 5, इसमें 150 वर्ड्स इच लिखने हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आपने लिख लिया। नाउ यू हैव टू आंसर एटलीस्ट, यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 1 फ्रॉम इच ग्रुप। अब जो बचे हुए हैं इसमें से आपको लिखना है कोई भी 3 प्रश्न, एटलीस्ट 1 फ्रॉम इच ग्रुप। 3 बचे और 3 6, 6 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इन 3 प्रश्नों के जो आप उत्तर देंगे, ये आपके ऊपर है कि या तो इसमें से आप 2 प्रश्न चुन ले। अगर मान लो कि आपने यहां से 2 प्रश्न ले लिया तो यहां से लेंगे 1 प्रश्न, और अगर आपने यहां से 1 लिया तो यहां लेंगे आप 2 प्रश्न। ठीक है, ले ली।
इन प्रश्नों के उत्तर कितने में लिखने हैं। अब देखो ये जो जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब प्रश्न कितने मार्क्स के हैं, 5 प्रश्न है। तो आप देखोगे कि 5 प्रश्न है, दैट इज 50 मार्क्स इंटू 5, दैट इज 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। ये मैपिंग के क्वेश्चन में मैप आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा, जगह भी का भी मेंशन होगा। यू हैव टू चूज दैट प्लेस एंड ऑल्सो राइट डाउन द 30 वर्ड्स, ओनली 30 वर्ड्स, केवल 30 शब्द लिखने हैं आपको। तो ये जो पैटर्न है पेपर फर्स्ट का, लगभग यही पैटर्न पेपर सेकंड का है, केवल यहां मैपिंग की जगह शॉर्ट नोट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे वहां आएंगे। एक बार आप उसको भी देख लो। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8. Just like paper first, question number second, question paper second, you also have 8 questions. Question number 1 is compulsory. Question number 5 is also compulsory. And now you have to write the answer. At least 3. You have to write the answer 3, at least 1 from each group. अब इस 3 में से आप देख लो, अगर यहां से आप 2 आंसर करते हो तो आप यहां पर 1 करोगे, और अगर यहां पर 1 करोगे तो इसमें आपको 2 आंसर करने पड़ेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, और इनमें 3-3 रहेंगे। सेम पैटर्न यहां भी फॉलो होगा, यहां भी फॉलो होगा। इसमें भी वही सेम पैटर्न है, ए, बी, सी, डी, ई, और यहां भी वही पैटर्न है, ए, बी, सी। अब आप देखो यहां पर टोटल ये जो आंसर लिखने हैं तो आपको 150, यानी कि ये हो जाएंगे आपको 750 वर्ड्स, और 750 वर्ड्स के आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3750 वर्ड्स in just 180 minutes. But practically you are not in position to write 80 minutes, practically 170 minutes. 5 minutes for official formalities and 5 minutes for framing the answer. 5 minutes for official formalities and 5. So now you have to write only 170 minutes. And now what's your strategy? 22 words per minute. You have to write 22 words per minute. ये जो प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रश्न में कोई भी प्रश्न बहुत डिटेल में नहीं आते, और आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? 150 वर्ड्स। यहां देख लो। अब आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं कि अगर कोई प्रश्न, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगर कोई प्रश्न 10 मार्क्स का आए तो आप उसमें लिखना 150 वर्ड्स। अगर ये 20 मार्क्स के आए तो 300 वर्ड्स,
and 15 marks. 15 marks. 225 words. आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जितने मार्क्स के आए उसके हिसाब से आप वर्ड डिसाइड कर देना. 10 मार्क्स, so just note down all these things in your notebook. अब ऑन हुआ, देखिए तो आवाज, साउंड. हेलो. ठीक. मैं फ्रेश एक बार लिख देता हूं. अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, 150 वर्ड्स. 15 मार्क्स, 225 वर्ड्स, 20 मार्क्स, 300 वर्ड्स. Each question. $750 वर्ड्स. प्रत्येक प्रश्न के 3 भाग आपको मिलेंगे. आप ध्यान से देखना यहां पर. ए, बी, सी. अब यदि मान लो कहीं पर अगर दे रखा है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड में आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा. तो 20 मार्क्स मीन्स 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स. आप जोड़ लो, 750 वर्ड्स हो गए. और नॉर्मली पेपर फर्स्ट में आप देखना ए, बी, सी, 20 marks, 15 marks and 15 marks. 300 words, 225 words and 225 words. दोनों ही कंडीशन में आप देखो टोटल कितने हो रहे हैं, 750 वर्ड्स. इनको भी आप देख लो, ये टोटल हो रहे हैं 750 वर्ड्स. पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, कोई चीज आ रहा है. सर जी कट कर दिया. सर जी, सर जी हेयर कट, अच्छा हेयर. हाँ,
बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और जो हमसे काफ़ी समय से जुड़े रहे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हेयर कट करवा दिया। दरअसल अभी ये क्लास आपका दिल्ली से चल रहा है, और दिल्ली में इतनी गर्मी पिछले दिनों पड़ी और अभी भी है कि उस गर्मी के कारण मैंने हेयर कट करवाया। फिर देखिए जब गर्मी समाप्त हो जाएंगे तो हेयर आ जाएंगे, तो अपनी खेती है, आ जाएंगे। मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो हिस्ट्री है, इसमें आप देखो कि यू हैव टू राइट 750 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। और जब आपको ऑप्शनल में लिखने का तरीका आ गया तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द जीएस मेंस। और जीएस मेंस 1000 का है। अब देखो आप यहां पे जीएस में और ऑप्शनल में क्या फर्क है। हिस्ट्री ऑप्शनल 500 मार्क्स, और दूसरी ओर आप जीएस को देखो। जीएस में टोटल मिला के हैं पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पेपर है। और 4 पेपर मिलाकर मार्क्स कितने हैं? 1000 मार्क्स। 4 अलग अलग प्रकार के आप देख लो पेपर है, और प्रत्येक पेपर में भी फिर उसके सब डिवीजन है। हाँ, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो 1000 मार्क्स का है, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो जितने मार्क्स लाओगे उससे बहुत ज्यादा मार्क्स आप हिस्ट्री ऑप्शनल में उठा सकते हो। आज की तारीख में भी जो जीएस में मार्क्स आ रहे हैं उससे ज्यादा मार्क्स ऑप्शनल में आ रहे हैं। जीएस में अगर 100 एवरेज भी आ जाए 1000 में, तो आप देखो इसमें 400 प्लस लाना बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और वहीं आप देख लो यहां हिस्ट्री में अगर आप लाना चाहोगे यहां पे, तो आप देखो यहां पर केवल हिस्ट्री में 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। 500 में 300 मार्क्स प्लस आ रहे हैं, यहां 1000 में 400 प्लस आ रहे हैं। ऑप्शनल आज की तारीख में भी डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। ऑप्शनल इज वेरी डिसाइडिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। और प्रत्येक जीएस के पेपर में आप देखो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने बताया कि डिवीजन सब डिवीजन है, और यहां केवल हिस्ट्री है 300 प्लस में आ रहा है। क्योंकि आज की तारीख में भी ऑप्शनल में मार्क्स उठाना ज्यादा आसान। अब इसके आगे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सिलेबस आप देख लो एक बार। आज हम विस्तार से नहीं जाएंगे। पेपर फर्स्ट सिलेबस आप देखो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपके लिए लाया है। पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है, और ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। वेल डिफाइंड सिलेबस है ये। इसी प्रकार ये पेपर सेकंड का है। एक बात आप ध्यान रखना, सिलेबस जो दिया गया है इतिहास का, वो इतना डिफाइंड है कि एक एक टॉपिक को डिटेल में उसने लिख रखा है। कई ऑप्शनल में टॉपिक वेल डिफाइंड नहीं है,
केवल कुछ शब्द लिखकर छोड़ दिए गए। तो जब आपको उस पर प्रश्न आता है तो एस्पिरेंट्स और अन्य लोग शॉक रह जाते हैं कि अच्छा ये डायमेंशन भी है, हमने तो कभी इस डायमेंशन से सोचा ही नहीं था। वही हिस्ट्री में आप देख लो, अगर कोई एक टॉपिक है, मान लो हड़प्पन कल्चर है, तो उसके जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सब लिख रखा है वहां पर। ओरिजिन, डिक्लाइन, रेस, नेचर, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, religion, all things are well defined, just as the Vedic culture, Mahajanpada culture, and all these things. So history syllabus is well defined. Paper second, just go through the paper second. अब देखो, आप ये जो हमने आपको सिलेबस दिखाया, तैयारी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व योर सिलेबस। द फर्स्ट इज ऑब्जर्व योर सिलेबस। सेकेंड पॉइंट, टू ऑब्जर्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड देन स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। ये जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये जितने प्रश्न हैं, आप देखो सब हमने आपके लिए तैयार कर रखा है। आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर पर मैपिंग से संबंध, ये मैप ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है आपको, और इस मैप में मेंशन भी है। आपको करना क्या है, इस जगह को तलाश करनी है कि जो प्रश्न में दिया गया है चौथे नंबर पर, वो ये चौथा नंबर कौन सा है, और 30 वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखना। मैथमेटिक्स की तरह नंबर आते हैं इसमें। यही कारण है कि हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। एक बात और, आप एक बात और ध्यान में रखना कि हिस्ट्री में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, इस पे हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। यहां देखो, आंसर राइटिंग स्किल। मैं अलग से एक सेशन लूंगा इस पर, आंसर राइटिंग स्किल पे। कई सेशन ओजांग सर के ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस पे, आप उसको भी देख सकते हो। और मेरा हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में होगा ये कि हाउ टू राइट ए आइडियल आंसर, मॉडल आंसर। So we have 3 important factors. First one, content. First one, content. विषय वस्तु। कोई भी प्रश्न आपके सामने पूछा जाए तो सबसे पहले बेसिक कंटेंट आपके पास पता होना चाहिए। मान लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर द बैटल ऑफ सेडान Europe lost a mistress and gained a master. Comment on the following statement in 300 words or 200 words. नीचे दिए गए वक्तव्य पर टिप्पणी लिखिए कि सेडान की लड़ाई के पश्चात यूरोप ने एक स्वामिनी को खो दिया और एक स्वामी को प्राप्त कर लिया। यूरोप लॉस्ट ए मिस्ट्रेस एंड गेन्ड ए मास्टर। तो कंटेंट जो है, विषय वस्तु, ये नॉलेज का पार्ट है, ज्ञान का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉलेज अबाउट द बैटल ऑफ सेडान। ये बैटल ऑफ सेडान कब हुए थे, किस में हुए थे, किन के बीच हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं
कि ये सेडान की लड़ाई जर्मन यूनिफिकेशन से संबंधित है। एंड इन दिस बैटल फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी at the battle of Sedan in 1870. That is the part of the German unification. तो अगर आपको यह जानकारी है कि सेडान की लड़ाई किस परिप्रेक्ष्य में हुई, ये कंटेंट है। देन यूरोप लॉस्ट ए मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस टर्म was used for France and gained a master. Master term was used for Germany. And why mistress, why master? I will discuss in the regular class. अब ये कंटेंट अगर आपको जरूरी है तो ये कैसे आएंगे? स्टडी से, पढ़ाई से। Either you go through all the important books of world history or otherwise you have to watch my classes. अगर आप किताबों को पढ़ते हैं उसके माध्यम से हो सकता है, मेरे वीडियोस को देखकर हो सकता है, या दोनों से हो सकते हैं। ये एक तरीका है कि कंटेंट को बनाने का, जानने का। अब जब कंटेंट है आपके पास तो दूसरा स्टेज आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, कि हाउ टू प्रेजेंट माय आंसर, हाउ टू प्रेजेंट। द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज on the use of graphs, the use of chart, especially flow chart, and especially statistical data. That is the new approach of history. मानचित्रों का प्रयोग, फ्लो चार्ट का प्रयोग, सांख्यिकीय आंकड़े का प्रयोग, इससे आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन है उसका वैल्यूएशन बदल जाएगा। आप किसी ढाबा में खाना खाते हो, किसी एसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो और 5 स्टार होटल में खाना खाते हो, क्या फर्क है? फर्क है प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन का। आप कभी 5 स्टार होटल जाओ, अभी हाल ही में मैं ओबेराय होटल गया था, आप देखो वहां पे किस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन डील करते हैं वो अपने कस्टमर से। दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। और यही फर्क करता है कॉमन स्टूडेंट और टॉपर्स में। श्रुति शर्मा के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखो उसमें। शी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, स्पेशली फ्लो चार्ट, डायग्राम, स्टैटिकल डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स। यही अंतर करेगा आपको एक सामान्य में और टॉपर। एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज, भाषा, either Hindi or English, whatever you have chosen, but you have to command on your own language. जिस भाषा का भी प्रयोग करें, either English or Hindi, you have to command on that language. एक्सप्रेशंस ऐसा हो कि जब आप लिखें तो प्रवाह आ जाए उसमें। जो एक एग्जामिनर है उसकी नजर आपकी कॉपी से ना हटे। तो राइटिंग स्किल, दैट इज लैंग्वेज, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट इज द पार्ट ऑफ द राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल रातों रात डेवलप नहीं होता, इट्स टेक टाइम्स। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। आपको काम करना पड़ेगा इस पे।
लास्ट 2 decades से आई एम मेंटरिंग द IAS aspirants लास्ट 2 decades, and according to my personal opinion, writing skill is the most important phenomena of this civil services examination. कम नॉलेज के साथ भी राइटिंग स्किल अगर आप में है तो आप टॉप स्कोर कर सकते हो, और बहुत सारा नॉलेज आपके पास है, बट यू डोंट हैव द राइटिंग स्किल, you never succeed in such type of examination. It's not the academic examination. I am also associated with the academies and also competition examination. दोनों की डिमांड अलग अलग है, डिसिप्लिन अलग है. First of all, you have to know about the nature of the question, demand of the question, and then you have to present yourself in a such a way that you get the maximum marks in your answer. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, I am going to discuss my way of presentation. अब देखो, अब ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है और पूरे विश्व इतिहास को हमने इस डायग्राम फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया. जब एक बार आप इस डायग्राम को समझ जाओगे तो पूरा विश्व इतिहास आप समझ जाओगे. तो ये बहुत जरूरी है कि आप के पास एक विजन हो, दृष्टि हो. आप जस्ट ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ डायग्राम. बंद कर दिया आपने. इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए. ठीक, अब देखो यार, जो हमारा सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. मिडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ओनली द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम रेनेसा एंड लास्ट विथ ग्लोबलाइजेशन. अब आप देखो यहां पे रेनेसा से प्रक्रिया शुरू होती है. Renaissance, then Reformation, Commercial Revolution, Capitalism, and Nation State. These were the 5 important phenomena of world history during 15th, 17th centuries. 5 important phenomena. And after that, we have so many important phenomena, especially 5 more topics, 5 more in 18th century. That was just the continuation of these 5 phenomena. Commercial revolution was directly or indirectly related to American Revolution, French Revolution, Industrial Revolution Part 1, colonialism and imperialism,
and Enlightenment. Capitalism, next colonialism and imperialism. Nation state, next enlightenment. अब आप देखो कि प्रश्न यहां से आ रहे हैं, और जो प्रश्न आते हैं कोई नहीं, टोटल कितने अभी है, ठीक। अब देखो आप यहां एनलाइटमेंट, ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। और जो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन है, दैट वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट 1, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट 2, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, देन अमेरिकन सिविल वार, इसी का एक्सटेंशन। इसको बंद कर दो, आवाज वाइब्रेट कर रही। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोपियन रिवॉल्यूशन, colonialism and imperialism, socialistic ideas and Marxian socialism, enlightenment, unification of Germany and Italy. After that, World War First, Russian Revolution, Great Economic Depression and New Deal policy, World War Second, Cold War, disintegration of USSR, and ultimately globalization, the most recent phenomena of the world history. So if you are in position to understand all these topics, then it is very easy to deal the questions related to GS mains paper. In the same way, if you are in position to understand the modern Indian history, in my next class I will discuss all these phenomena in detail. In the modern Indian history, starts with the decline of Mughals, then rise of regional powers, emergence of European powers. All these phenomena were interrelated. Then British economic structure, British administrative structure, then British educational system. After that, reaction of the Indian mind, tribal revolts, peasants revolt, the revolt of 1857, and socio-religious reform movement. Actually, we have two type of reaction, constructive reaction and destructive reaction. That is peaceful reaction or violent reaction. Socio-religious reform movement is the finest example of constructive reaction, and the revolt of 1857 is the finest example of destructive reaction. So you may compare and contrast with socio-religious reform movement and the revolt of 1857, and it is very favorite topic for civil services examination, both in optional and in GS. Rise of modern nationalism, Indian national freedom struggle, independence and partition, and post-independence. Post-independence is also the part of our syllabus, not only in GS, not only in the history optional, but also in GS mains. इसी प्रकार से एंशियंट और मिडिवल का भी मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा, और उस स्ट्रक्चर से यू कैन इजिली अंडरस्टूड ऑल दिस फेनोमेनास। ये देखिए तो आगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं, एंड द वेरी नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, आई विल अगेन came at 11 a.m. sharp, and I will discuss some other aspects, the detail of this structure, and also I will discuss some questions related to civil services, and also give you some very important reference book for history optional. So all the best, and
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।